everyone in this video lecture. As I discussed earlier, today I will explain you about writing task 1 which is called graph in your IELTS. ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟੈਕਡ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਸਕ 1 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੈਕਡ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਲ ਜਾਂ ਹੀਪ ਜਾਂ ਮਾਊਂਟ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਢੇਰ। मैं तुहानूं ग्राफ दिखाऊंगी, पहला सारा ग्राफ जिहड़ा एक्सप्लेन करांगे। पहला असीं इंट्रो लिखांगे, उस तो बाद असीं ओवरऑल लिखांगे जिहदे नाल तुहाडे बैंड्स वध सकदे ने। फिर बॉडी पैराग्राफ 1 असीं बनावांगे, बॉडी पैराग्राफ 2। सारा का सारा ग्राफ हुण तुहानूं दिखाया जाएगा और ग्राफ दे विच मैं तुहानूं दसूंगी कि BP 1 च असीं की लिखांगे, BP 2 च असीं की लिखना है, ओवरऑल असीं इंट्रो दे मतलब कि बाद विच लिखांगे। राइट, देखो ये स्टैक्ड बार ग्राफ है। सानू इधर नीचे जिहड़े हैगे है कुछ सानू दिते हुए हैं सोर्सिस, जिवें वाटर है, इलैक्ट्रिसिटी, पैट्रोलीयम, स्टीम, अदर कैमिकल्स, वुड। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਟੈਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਪਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੀਮ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੁੱਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ। ਦੀ ਚਾਰਟ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋਜ਼ the resources used to make 1000 disposable cups in different materials, polystyrene and paper। ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ 1000 ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੱਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਪੋਲੀਸਟਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਕੱਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਐਂਡ ਮੇਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੇਅਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ +2 ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਿਖੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਗॉट ਇਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੱਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਕੱਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਸਟਰੀਨ ਕੱਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫਸ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ BP 1 ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, BP 2 ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੂੰ ਸਟੈਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਮੇਨ ਪਾਇਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਟੇਬਲਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟੇਬਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਦੀ ਸਟੈਕਡ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਸਟ ਲਾਈਟ ਔਨ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। मैं प्रीवियस वीडियो च दस्या हुआ कि शो नहीं लिखना तो तुसी एल्यूसीडेट लिख सकते हो, एलिस्ट्रेट लिख सकते हो, शेड लाइट ऑन लिख सकते हो, डेमोनस्ट्रेट, डिपिक्ट, रिवील, काफ़ी सारे वर्ड है। तुसी वर्ड वो वाला लिखना है जिहदे तुहानूं स्पैलिंग अच्छी तरह आते हो। सब तो पहला ग्राफ का नाम लिखिया, दूसरे नंबर पर शो की जगह मैं वर्ड लगाया कास्ट लाइट ऑन। हुण ध्यान रखना बच्चे, जदों ग्राफ एक होवे ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਐਲਿਊਸੀਡੇਟ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਐਸ ਲਗਾਓਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ 2 ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਐਸ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਗॉट ਇਟ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸ ਲਗਾਉਣਾ। तो देखो सब तो पहला ग्राफ का नाम लिख के मैं शो की जगह वर्ड लिखा, फिर मैं WH फैमिली पाई है जी सिर्फ तुम इंट्रो च पा सकते हो। दी स्टैक्ड बार ग्राफ कास्ट लाइट ऑन हाउ
1000 इतने साढ़े को 1000 है नॉट 100 1000 बायोडिग्रेडेबल कप्स डिस्पोजेबल की जगह आप वर्ड यूज किया है बेसिकली डिस्पोजेबल का मतलब कि एक बार यूज करो तो सिट दो बायोडिग्रेडेबल राइट आर मैन्युफैक्चर्ड किवें 1000 बायोडिग्रेडेबल कप्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बनते हैं डिफरेंट स्टफ तो मटीरियल की जगह तुम इतने स्टफ लिख सकते हो तुम इतने एलीमेंट्स लिख सकते हो रिसोर्सिस लिख सकते हो नेमली पॉलीस्टीरीन एंड पेपर हुण तुसीं एग्जामिनर के इंट्रो नूं देखो और इसमें देखो कुछ वर्ड चेंज करने हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन देखो 1000 पॉलीस्टीरीन कप्स बनाने लिए आह मटीरियल चाहिए और 1000 पेपर कप्स बनाने लिए इन्ना मटीरियल सानू आह चाहिए मीनस क्वांटिटीज़ नाल किलोवाट किलोग्राम आ सानू दिते हुए ने गॉट इट सब तो पहला तुसीं देखो इनू कंपैरिजन करके भी लिख सकते हो कि जे पॉलीस्टीरीन कप्स नू वाटर दी इन्नी जरूरत होंदी है तो पेपर कप्स बनाने तो इन्नी या तुसीं बहुता कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहते तो एक बॉडी पैराग्राफ असीं बना दिंदे इत्थे पॉलीस्टीरीन कप्स का एक बॉडी पैराग्राफ दूसरा असीं बना देंगे 1000 पेपर कप्स का अगली वीडियोज़ मैं तुहानूं कंपैरिजन करके भी सिखाऊंगी कि किवें बनते हैं अज मैं तुहानूं डिफरेंट सिखा रही हूँ गॉट इट तो देखो सब तो पहला असीं बॉडी पैराग्राफ 1 बनावांगे पॉलीस्टीरीन कप्स 1000 बनाने के लिए किहड़ा मटीरियल चाहिए हुण काफ़ी सारी फिगर्स है किवें मैंशन करोगे सब तो पहला तुसीं हाईएस्ट फिगर देख लो हाईएस्ट फिगर किहड़ी है साडी किहड़ी नज़र आ रही है तुहानूं आह वाली तो सब तो पहला असीं जिक्र करांगे कि 1000 पॉलीस्टीरीन कप्स बनाने के लिए सानू मैक्सीमम स्टीम चाहिए है किलोग्राम्स के 130 किलोग्राम इत्थे होर एक चीज़ नोटिस करने वाली है बच्चे कि देखो सानू इस ग्राफ के कोई ईयर नहीं मैंशन किया होया असीं इहनूं पैसिव फॉर्म च लिखांगे इज़ ते आर नाल थर्ड फॉर्म लगाई जावांगे मैं फिर तो दस रही हां इज़ ते आर नाल थर्ड फॉर्म लगाई जावांगे उहदा मतलब ये बन जाता है कि इन्नी स्टीम यूज़ होंदी है इन्ने अदर कैमिकल्स यूज़ होंदे हन इन्नी वुड यूज़ होंदी है तो देखो सब तो पहला असीं स्टीम का जिक्र करांगे कि स्टीम पॉलीस्टीरीन कप्स बनाने लिए 130 किलोग्राम्स यूज़ होंदी है उस तो बाद आपां सब तो घट लिखांगे जिवें कि वुड का यूज़ ही नहीं हुंदा असीं लिखांगे कि वुड का जिहड़ा यूज़ है वो 0 हुंदा है उस तो बाद असीं लिखांगे कि अदर कैमिकल्स है जिहड़े वो 13 किलोग्राम्स यूज़ होंदे उन्हां दी क्वांटिटी इलैक्ट्रिसिटी किलोवाट्स दे विच ते पैट्रोलीयम किलोग्राम्स दे विच 2 दा डिफरेंस है और जिहड़ा वाटर है वो 0.6 M3 यूज़ होंदा है गॉट इट BP2 दे विच मैं तुहानूं बाद एक्सप्लेन कर दी पहले मैं तुहानूं BP1 बारे लिखदी हां बॉडी पैराग्राफ 1 ऑलरेडी मैं तुहानूं दसदा बोर्ड ते लिखा देखो सब तो पहले तुसीं लिंकर लगाना है लिंकर की लगाया मैं हैविंग अ म्योपिक व्यू वैसे मेरी लिंकर्स वाली वीडियो भी हैगी है कि किहड़ा लिंकर तुसीं BP1 च लगाना टास्क 1 च किहड़ा टास्क 2 च लगा सकते हो गॉट इट ਇਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा बैंड बूस्ट हो जाएगा जो डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो बैंड बूस्ट नहीं होंगे थोड़े हैविंग तो कोई लाइन स्टार्ट हो गई तो मतलब का बाद म्योपिक होंगे नेड़े तो देखना साइड होंगे देखना नियर साइड में मीनिंग है कहते नेड़े तो झात मारन तो बाद कोमा जो भी लिंकर लगाना कोमा जरूर तुसीं लगाना इट इज़ कॉन्सिपिकस दैट तुसीं कॉन्सिपिकस की जगह पर क्लीयर भी लिख सकते हो ल्यूसिड लिख सकते हो विविड लिख सकते हो क्वाइट एपरेंट लिख सकते हो मीनस वर्ड वो लिखने हैं जो तुम स्पैलिंग्स याद रह जा इट इज़ कॉन्सिपिकस दैट ये चीज़ क्लीयर है कि मैक्सिमम स्टीम इज नीडेड देखो उन्हें तो सिंगुलर नाल इज लगता नाल मैं की लगाती थर्ड फॉर्म में पैसे बन गए थे पंजाबी वाली कि मैक्सिमम स्टीम यूज होती है टू मेक 1000 पॉलीस्टीरीन कप्स अकाउंटिंग फॉर जो सारी लाइन खत्म हो रही तो असीं हुण इहदी फिगर दसनी है तो असीं की लिखता अकाउंटिंग फॉर 130 kg नोट करने वाली गल है कोमा the use of wood is not का मतलब होता है 0 अदर केमिकल्स आर रिक्वायर्ड देखो फिर मैं इतने आर क्यों लगाया क्योंकि केमिकल्स है प्लूरल है इज हमारा थर्ड फॉर्म या तो इज नाल थर्ड फॉर्म लगूगी या आर नाल थर्ड फॉर्म लगूगी अदर केमिकल्स आर रिक्वायर्ड 13 kg व्हेन इट कम्स टू इलैक्ट्रिसिटी एंड वाटर ये भी एक एक्सप्रेशन है ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿੰਕਰ ਲਗਾਉਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਈਅਰਸ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਈਅਰ 1990 ਕੋਮਾ ਜਦੋਂ 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1990 ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਮ ਲਿਖੋਗੇ ਵੈਨ ਇਟ ਕੇਮ ਟੂ ਈਅਰ 1990 ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ 1990 ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਈਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ when it comes to electricity and water comma these are energy saving
एनर्जी सेविंग क्योंकि ये घट लगते हैं किहड़े कप बनाउण च पॉलीस्टीरीन कप च। ओनली कॉस्टिंग 6 किलोवाट्स। देखो इत्थे मैं सब तो पहले इलैक्ट्रिसिटी लिखिया तो इलैक्ट्रिसिटी की फिगर लिखती, फिर दूसरे नंबर पर आपां वाटर लिखिया तो वाटर की फिगर लिखती। जो इलैक्ट्रिसिटी ते पानी की गल आती है तो ये एनर्जी सेविंग है जिहड़े कितनी कॉस्ट करते हैं 6 किलोवाट एंड 0.6 M3। एंड तो साडा इको ही रह गया पेट्रोलियम इज यूज्ड 8 kg। एक चीज़ का होर ध्यान रखना है, ये टेबल ग्राफ नहीं है, स्टैक है, मीनस थोनों कंपाइल करके कुछ फिगर्स दित्तियां हुई ने उपर। और कई बारी टेबल ग्राफ के मैं तुहानूं दसूंगी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, थोनों लगे फिगर्स बहुत ज़्यादा ने तो तुसीं मेन मैक्सीमम और मिनीमम वाली चक लेनी है, विच विचाले वाली छड्ड सकदे क्योंकि 150 तो 180 वोट्स के विच असीं रहना है। हुण मैं तुहानूं दसदी हां BP2 च असीं किवें लिखना है। देखो हुण आपां ये 1000 पेपर कप्स यानी कि बॉडी पैराग्राफ सेकंड की गल करनी है। सब तो पहला ध्यान नाल देखो तुहानूं फिगर किहड़ी इस वड्डी नज़र आ रही है, यह वाली। यानी कि पहले नंबर ते असीं एक्सप्लेन की करांगे कि वुड का यूज़ जिहड़ा हैगा पेपर कप्स बनाउण लई सब तो वध यूज़ हुंदा है एज़ कंपेयर टू पॉलीस्टीरीन कप्स, क्योंकि इहदे च यूज़ हुंदा ही नहीं। दूसरे नंबर पर रेशो सॉरी नॉट रेशो, इफ ये वाली फिगर ज़्यादा वड्डी है तो आप लिखांगे कि इलैक्ट्रिसिटी भी इस ज़्यादा यूज़ होंगी है पेपर पॉलीस्टीरीन कप्स के नालों। तीसरे नंबर पर आप एक्सप्लेन करांगे इस चीज़ नूं पेट्रोलीयम नूं, फिर असी एक्सप्लेन करांगे वाटर नूं, फिर अदर कैमिकल्स नूं, और सब तो एंड ते असी स्टीम यूज़ करांगे। और असी थोड़ा जिहा कंपैरिजन इत्थे करांगे कि स्टीम का यूज़ मैक्सीमम होया सी पॉलीस्टीरीन कप्स बनाउण दे लई, लेकिन पेपर कप्स बनाउण दे लई स्टीम का जिहड़ा यूज़ है वह नैगलीजिबल है। बस एवें ही असी सारिया फिगर्स मतलब कि सब तो पहला हाईएस्ट फिर लोएस्ट करते हुए आप सारिया ये फिगर्स मैंशन कर देंगे और उस तो बाद जिहड़ा हैगा मैं ओवरऑल तुहानूं दसूँगी। बॉडी पैराग्राफ 2 च भी मैं पहला लिंकर लगाया फर्दर एग्जामिनिंग दी चार्ट। फर्दर का मतलब होंदा अगे एग्जाम आप देने ना परीक्षा तो उतो वर्ड बने एग्जामिनिंग परखना मीनस अगे चार्ट नूं परखते हुए। इट इज़ ल्यूसिड दैट, ल्यूसिड का मतलब कि होंदा क्लीयर है, कॉन्सिक्वेंस ल्यूसिड क्लीयर आपस च सिनोनिम है, राइट। यही चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि टू प्रिपेयर 1000 पेपर कप्स 1000 कप्स नूं बनाउण दे लई वुड इज़ हाईली रिक्वायर्ड एज अगेंस्ट पॉलीस्टीरीन कप्स। मैं थोनों पहला भी दस्सिया कि सब तो पहला हाईएस्ट फिगर यूज़ कर लिया था। पेपर कप बनाने लई वुड का यूज़ हाईली है, हाईली रिक्वायर्ड है किहदे नालों एज अगेंस्ट पॉलीस्टीरीन कप्स। फिर ये फिगर लिख दो जिवें पिछे मैं बॉडी पैराग्राफ 1 यूज़ किया सी अकाउंटिंग 4 जो सारी लाइन खत्म हो जाता है जो वर्ड पा सकते हो अमाउंटिंग टू 220 किलोग्राम। ये मैं तां कीता है अंडरलाइन की जो सारी लाइन खत्म हो जाए फिगर लिखनी उस तो बाद तुसीं इस तरीके के वर्ड्स पा सकते हो। नेक्स्ट पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज्ड मोर देन पॉलीस्टीरीन कप्स। बिजली का यूज भी ज़्यादा होता है किहदे नालों पॉलीस्टीरीन कप्स नालों। फिर देखो हाँ लाइन पाती मैं कंप्राइजिंग ऑफ वर्ड पाता कितना 78 किलोवाट्स। हुण तुसीं अज 3 वर्ड सीख गए जो लाइन खत्म हो जाए काउंटिंग 4 अमाउंटिंग टू ते कंप्राइजिंग ऑफ। तुसीं कंप्राइजिंग दे नाल ऑफ लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एंड अदर कैमिकल्स हैव डिफरेंस ऑफ 8 kg क्योंकि इन्होंने एक चीज़ 10 किलो kg यूज़ हो रही है और एक चीज़ 18 kg यूज़ हो रही है, यानी कि दोनों च डिफरेंस 8 kg है। जो तुहानूं लगता है कि एवें क्लीयर नहीं होएगा वैसे आप दोनों च डिफरेंस कढ़ता तुसीं अलग अलग इन्हां दी फिगर भी लिख सकते हो। वाटर इज यूज्ड 10 M3। वाटर का यूज़ कितना होता है 10 M3। देखो आ वर्ड बहुत बच्चे जो जोड़ते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तुसी वर्ड्स उन्ने खाने हैं जिन्ने डाइजैसट कर सको, मीन जिन्ने तुसी बोल सको स्पीकिंग दे विच या जिन्ने तुसी स्पैलिंग सही करके लिख सको। मैं बार बार ये चीज़ अपने हर वीडियो रिपीट करती हैं। वर्ड में लिखा है इंट्रीगनली, मैं फिर तो बोल रही हैं इट इज़ इंट्रीगनली, इट इज़ नॉट इंट्रीगुइंगली। कई बच्चे लोग कहते हैं दैट इज रॉन्ग। मैं एक बार फिर बोलती है इट इज़ इंट्रीगनली। नहीं लिखना तो लिख सकते हो इंटरेस्टिंगली। दिलचस्पी वाली गल है कि स्टीम इज नीडेड merely 0.566 kg। कहते दिलचस्पी की गल है कि स्टीम सिर्फ इन्नी चाहिए है विच इज़ यूज्ड हाईएस्ट इन मेकिंग पॉलीस्टीरीन कप्स, जिहड़ी कि सब तो हाईएस्ट चाहिए है पॉलीस्टीरीन कप्स बनाने लई। यह है साडा बॉडी पैराग्राफ 2 ओवरऑल। हुण एक चीज़ ओवरऑल दस्सण तो पहला आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जे तुसी इंट्रो तो बाद ओवरऑल लिखोगे तो वह बेनीफिट ज़्यादा है, बैंड स्कोर ज़्यादा मिलेगा।
मैं BP1 ਤੇ BP2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖ ਕੇ 5 ਲਾਈਨਸ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, क्योंकि इंट्रो तो बाद असीं एक लाइन प्लेन छड्डनी है, फिर ओवरऑल लिखना है, फिर लाइन छड्डनी है, फिर BP1 लिखना है, फिर लाइन छड्डनी है, फिर BP2 लिखना है। मैं इतने ओवरऑल लिख रही हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इंट्रो तो बाद असीं ओवरऑल किवें लिखीए। कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू ग्राफ तुसीं 4 लाइन्स छोड़ दिया करो, उस तो बाद इंट्रो लिखो, फिर लाइन्स छोड़ दो 4 या 5, फिर BP1 लिखो, BP2 लिखो, उस तो बाद ऊपर आके पेंसिल के नाल तुसीं ओवरऑल लिख दो। तो देखो ओवरऑल की मैं लिखा है, ओवरऑल इट इज सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट ये ग्राफ तो देखा जाता है कि द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टीरीन कप्स इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, जिहड़े वातावरण के अनुकूल है कि दी प्रोडक्शन पॉलीस्टीरीन कप्स बनाने लिए इको फ्रेंडली है। एज इट कॉस्ट्स लेस एनर्जी, बिजली घट लगती है, एंड डज नॉट नीड वुड ते लकड़ का यूज भी नहीं होगा विज़-अ-वी पेपर कप्स, किहदे नालों पेपर कप्स, क्योंकि पेपर कप बनाने वास्ते मैक्सीमम वुड का यूज होता है, मैक्सीमम इलैक्ट्रिसिटी यूज होती है, इस करके पॉलीस्टीरीन कप्स की जिहड़ी प्रोडक्शन है वो इको फ्रेंडली है, क्योंकि उहदे एनर्जी घट लगती है, वुड का यूज घट होता है, किहदे नालों विज़-अ-वी पेपर कप्स। हाँ मैं प्रोनाउंसिएशन लिखती, कई बच्चे कहते हैं विस-अ-विस, इट इज नॉट विस-अ-विस, इट इज विज़-अ-वी, जिसका मतलब होता है नालों। मैं इहदे सिनोनिम भी लिखे है, तुसीं विज़-अ-वी नहीं लिखना तो रैदर दैन लिख सकते हो, कल्ला दैन लिख सकते हो, एज कंपेयर्ड टू लिख सकते हो, एज अगेंस्ट लिख सकते हो। कई बार की होंगे है कि तुसी नालों 2-3 बार लिखना चाहते हो तो वर्ड की रैपिटेशन हो, इस करके मैं सिनोनिम लिखते, इनू असीं राइटिंग टास्क 2 च भी किसी न किसी तरीके नाल यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो तुहानूं टॉपिक समझ आया होगा। कोई थोड़ा क्वेरी होवे तो तुसी कमेंट सैक्शन च जाके अपलोड कर सकते हो। सो विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।